Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class. Let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So, in previous video, we have completed question number D, that is write the question answers, and question number 1 and question number 2. Okay, this question we have already completed in our classwork copy. So now we will start from question number 3, and the name of your chapter is Seeing is Believing. So let's start with question number 3. What is a magnifying glass? What are its uses? What is a magnifying glass and what are its uses? So note down the question, student. What is a magnifying glass? What are its uses? Okay. So with the help of a magnifying glass, student, we can examine those things which are smaller fingerprints of the hand, or another thing which you are able to see with the magnifying glass is the fine prints also. ऐसी चीज़ें जो बहुत स्मॉल होती हैं और क्लियर विजिबल नहीं होती हैं. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास हम इन चीज़ों को, फिंगरप्रिंट्स है, फाइन प्रिंट्स, इन सब को ईजिली विजिबल हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके, बिकॉज ये उस इमेज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है. ठीक है, इमेज को बड़ा कर देता है. तो फिंगरप्रिंट्स है, फाइन प्रिंट्स है, सो वी कैन सी दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द magnifying glass. So note down the answer. Magnifying glass or lenses that is used to examine small or finely detailed things such as fingerprints, and
fine prints such as fingerprints and fine prints are called it a magnifying glass. ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग ग्लास और व्हाट आर इट्स यूजेस, दे दोनों आंसर एक ही में कंबाइन करके लिखवा दिए हैं। कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो, क्योंकि लास्ट में मैंने लिखा है कि आर कॉल्ड ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप सोचोगे कि दिस आंसर विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज ओनली अप टू दिस, व्हाट इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, नो, दिस व्हाट आर इट्स यूजेस, दैट आल्सो आई हैव रिटन इन दिस. So both the question combined answer has written for both the question. See, a lenses that is used to examine small or finely detailed things, so such as fingerprints and fine prints are called a magnifying glass. So it is asked here in the question, what are its uses? So with the help of a magnifying glass, okay student, so with the help of a magnifying glass we can examine fingerprints and fine prints. ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या एग्जामिन कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स और फाइन प्रिंट्स को. ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Y is, question number 4. Y is Anthony. Y is Anthony Leeuwenhoek. Anthony Leeuwenhoek. Why is Anthony Leeuwenhoek known as father of microscopy? So note down the answer. Anthony Leeuwenhoek discovered microscope. Okay, so why Anthony Leeuwenhoek is known as a father of microscopy? Because Anthony Leeuwenhoek discovered the microscope, and with the help of the microscope, student, we can do the study of a microorganisms, means those living organisms which are those living organisms. So Leeuwenhoek discovered the microscope, and with the help of this microscope we can do detailed study of the microorganisms. These microorganisms are so small that we are unable to see them with the naked eyes. हम इन्हें अपनी naked eyes, अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ये माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं. तो ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप, एंड ड्यू टू दिस वी आर एबल टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब जितने भी बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये सब की डिटेल स्टडी हम, क्योंकि ये जर्म्स इतने छोटे हैं, जब ये कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं. ठीक है, सो व्हेन द डॉक्टर ask for the blood test
तो with this blood test report it is very clear that we are feeling ill or we are sick due to the attack of which type of a microorganism inside our body. So he has done a very good discovery, that is of a microscope. That is the reason Anthony Leeuwenhoek known as the father of microscopy. So now note down the answer. Anthony Leeuwenhoek discovered microscope. Okay, discovered microscope due to this great contribution due to this great contribution many discoveries and research due to this great contribution many discovery and research he has been called it the father of microscopy. ठीक है, क्योंकि देखो नाउ माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने से बहुत सी ग्रेट कंट्रीब्यूशन हुआ, बहुत सी डिस्कवरीज हुई. अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें डिटेल नॉलेज किससे पता चली? इन्हीं चीज़ों से पता चली. ठीक है, इसीलिए हमने एंथोनी ल्यूवेनहॉक इज नोन एज द फादर ऑफ द माइक्रोस्कोपी. सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. We have completed all the book exercises and question answer of this chapter. Now let's start a new chapter, that is living safely. Now in today's video, after completing chapter number 8, today we will start a new chapter number 9, and name of the chapter is living safely. Okay, so in this chapter, student, what are the learning objective of this chapter? After studying this chapter, you will understand what safety rules that we should follow to keep ourselves safe. And the second important thing which we will understand, that how to give first aid at the time of emergencies. ठीक है, so after studying this chapter, the two objective which we will understand this,
what safety rules that we should follow to keep ourselves safe, and what first aid should be given at the time of emergency. Now let's start with, see student, when we are talking about the accidents, accident can happen to anyone, anywhere and at any point. ठीक है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और कभी भी किसी भी समय हो सकता है। इसका कोई पहले से ये नहीं होता है कि टाइम होता है कि नहीं कल उसका एक्सीडेंट होना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। सो आप कभी भी बेटा ऑब्जर्व करिएगा, वन एवर देयर इज ए एक्सीडेंट एंड इफ यू सी देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट। जब हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, व्हेन वी डू नॉट फॉलो द रूल एंड व्हेन वी बिकम केयरलेस, देन दीज थिंग्स आर हैपन्स। ठीक है, जब या तो हम प्रॉपर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम केयरलेस हो जाते हैं, तभी एक्सीडेंट्स होते हैं। इज इट क्लियर? सो एंड एक्सीडेंट का मतलब यही नहीं है कि आप ही इंजर्ड हो सकते हो। एक्सीडेंट देखो प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट से आप भी इंजर्ड होते हो, वो बात सही है, लेकिन इससे प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, जैसे मान लो आप बाइक चला के जा रहे हो, किसी से आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको तो चोट लगेगी लगेगी, आपकी जो बाइक है वो भी टूट जाएगी, उस पर भी आपकी बहुत मनी लगेगी उसे ठीक कराने में। इसी तरह ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। मतलब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट में सिर्फ ह्यूमन बीइंग सफर, प्रॉपर्टी आल्सो डैमेज। ओके, सो नाउ how can we avoid these accident? by being more alert and careful। इन एक्सीडेंट को हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं बेटा? अलर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल रह के। ओके, सो दे कैन बी अवॉइड इफ वी फॉलो सम बेसिक सेफ्टी रूल्स एट होम, ऑन द रोड, इन स्कूल एंड इन द प्ले ग्राउंड। सो वन बाई वन we will discuss in this chapter what rules should we follow when we are in our house या home कह सकते हो, when we are on the road, when we are in our school or when we are in the playground, the time when we are playing the outdoor games. So what safety rules we should follow so that we can keep ourselves safe? So let's start with the home. Let's start with home. ठीक है, there are many points are given on the in your book, but I will discuss one point on the board and I will write small headings for that. I am not going to write the all sentence that I am going to explain this. Small notes I will give on the board, and in that manner I will explain all the safety rules which you should follow at home. Okay, so safety starts from home. देखो बेटा, सबसे पहले हमने सेफ्टी में होम को क्यों चूज किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो हम स्पेंड कर रहे हैं वो है हमारा होम। सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने घर में ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल आता है। हमारा सेकंड होम क्या है? स्कूल है। आप 6 to 7 आवर्स आते हो स्कूल में और फिर पढ़ के वापस जाते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं वो क्या है? होम है। अब देखो थोड़ा सा प्रेजेंट और पास्ट का बात कर लेते हैं। देखो सी स्टूडेंट, इन प्रेजेंट टाइम अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं, क्यों हम इतने सेफ्टी रूल्स की बात कर रहे हैं उसका रीज़न भी जान लो पहले, और उसके बाद होम में क्या क्या सेफ्टी करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। रीज़न इज दैट इन द प्रेजेंट टाइम सी वी हैव मेक आवर लाइफ मोर ईजियर एंड कंफर्टेबल। और ये सब कैसे हुआ? ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज हमने इतने ज़्यादा अच्छे आविष्कार कर लिए हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही ईजियर और कंफर्टेबल हो गई है। ठीक है,
तो ये सब किसकी वजह से हुआ? एडवांसमेंट हुआ किसका? साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से हुआ। ठीक है, आज अगर बेटा आप लोग देखो हमारे घर में, हम सोचो जिस घर में हम रह रहे हैं, ठीक है, जिस घर में हम बेटा रह रहे हैं, अगर आप ध्यान से घर की सारी चीज़ों को देखो तो आप ये चीज़ रियलाइज करोगे कि सारी डेंजरस चीज़ों के संग हम अपना पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं। आपका फैन है, सीलिंग फैन है, आपका टीवी है, फ्रिज है, कूलर, वॉशिंग मशीन। सो अगर आप अपने अगल बगल अपने घर की चीज़ों पे, अगर थिंग्स पे आप देखो तो हम बहुत डेंजरस चीज़ों के संग अपनी लाइफ बिता रहे हैं। ठीक है, पास्ट टाइम में क्या, पास्ट टाइम में लोगों के घरों में क्या होता था? अगर हम पास्ट की बात करें तो उस समय क्या घर में खाने पीने की आइटम्स होती थी, कपड़े होते थे, अलमीरा, ये सब चीज़ें होती थी। डेंजरस चीज़ में अगर देखा जाए तो पास्ट में क्या होता होगा? एक नाइफ होता होगा, चक्कू, जिससे किचन में मम्मी लोग खाना वाना बनाती होंगी। ठीक है, यही एक शार्प ऑब्जेक्ट घर में होता होगा। बाकी तो खाने का सामान है, डिब्बे हैं, ये सब है जिसमें हम जो डिफरेंट यूटेंसिल्स होंगे, ठीक है, जिस कंटेनर्स होंगे जिसमें हम ईटेबल आइटम्स को रखते होंगे। ओल्ड टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट में। लेकिन अगर आज प्रेजेंट के टाइम में अगर आप बात करो तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ों के संग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं कि जिनको हम अगर हैंडल अच्छे से नहीं करते, अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते, प्रॉपर सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, तो हमारी लाइफ भी जा सकती है, हम मर भी सकते हैं, या तो हम बुरी तरह इंजर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है पास्ट लाइफ और प्रेजेंट में। क्योंकि प्रेजेंट में लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है, बट ऑल द थिंग्स जिससे हम सराउंडिंग्स हैं अपने हाउस के अंदर, सारी थिंग्स डेंजरस है। मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमें उसे सेफली रूल्स फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को आप हैंड से टच कर दोगे। ठीक है, तो वही मेरे कहने का मतलब, दैट इज द रीज़न आज प्रेजेंट टाइम में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ हो गई है, लेकिन जो थिंग्स हैं हमारे अगल बगल वो सारी डेंजरस हैं हमारे लाइफ के लिए, और हम उन्हीं के संग रह रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न हमें अपने आप को, अगर हमें इन चीज़ों ने, इन इन्वेंशंस ने अगर हमारी लाइफ को बहुत अच्छा भी बना दिया है, तो इनसे प्रिकॉशंस भी कैसे लिए जा सकते हैं, इनसे अपनी लाइफ को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो एट होम, ठीक है, डू नॉट यूज, मैं शॉर्टकट में चलूंगा, डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपके हाउसेस में, ठीक है, डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट में आपके हाउस में आ गया सीजर्स हैं, आपके फादर लोग के शेविंग ब्लेड्स हैं, ठीक है, नाइफ है, नाइफ्स जो आपकी मम्मी लोग किचन में चक्कू यूज करते हैं वेजिटेबल ये सब काटने के लिए, तो और सीजर भी आ गई। डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट, ओके, एंड इफ यू आर यूजिंग देन यूज अंडर द सुपरविजन ऑफ द एल्डर्स, या तो आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हो या तो आपके पेरेंट्स। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट्स हमें यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि आप अभी क्लास 5 स्टैंडर्ड में हो। ठीक है, तो आपको ये सब प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे अगर आपने आपको सेफ रखना है। मान लो अभी फर्स्ट टाइम, मान लो तुम्हें अक्सर होता है ना, बच्चे मम्मी लोग को काम करते देखते हैं किचन में, तो जब कोई चीज़ हम पहली बार सीखते हैं ना बेटा, तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत जोश होता है हमारे अंदर। फिर वही जब हम डेली करने लगते हैं ना, तब फिर वो एक हैबिट में आ जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे अपनी मम्मी लोग को किचन में वेजिटेबल्स काटने देखते हैं तो उनको भी लगता है कि क्यों, हम क्या कर रही है मम्मी, वो ये नहीं समझते हैं कि वो कितना शार्प है। या मदर को उसको यूज़ करने का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, देन शी आर यूजिंग सो सॉफ्टली। तो बच्चे क्या होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को करते देते हैं, वो सोचते हैं मम्मी कट कर रही है वेजिटेबल तो हम भी ट्राई कर रहे हैं। इसी ट्राई करने में कई बार बच्चे अपने फिंगर्स कट कर लेते हैं। ठीक है, और देखो फिंगर ज़्यादा गहराई से कट जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी। इसलिए कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स को नहीं छूना चाहिए। अगर शार्प ऑब्जेक्ट्स को आप छूते भी हो तो अंडर द सुपरविजन ऑफ द एडल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज यूज ए लेडर और स्टूल। नेक्स्ट पॉइंट है लेडर।
LADDER, लैडर और स्टूल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोलना है बेटा, अगर घर में कोई सामान समथिंग इज केप्ट एट अ हाइट देन ऑलवेज यूज अ लैडर। ठीक है, सीढ़ी बोलते हैं। और लैडर भी ऐसा नहीं है बेटा कि आप लैडर लगाने के बाद सीधे ऊपर हाइट वाली जगह पे चले जाओगे। आप लैडर पे तभी जाओगे जब नीचे कोई समवन इज होल्डिंग दैट, नीचे आपका घर का कोई मतलब कोई उसे पकड़ा हुआ है, क्योंकि कभी कभी होता है लैडर भी स्लिप कर जाती है, तो उससे भी आप इंजर्ड हो सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज एक वुड का होता है, स्टूल्स होते हैं, यू कैन यूज दैट स्टूल टू रिच टू द हाइट प्लेस। ठीक है, थर्ड है डू नॉट लीव टॉयज, डू नॉट लीव, do not leave toys. See, this is the habit of the, this is a very good sentence, this is the habit of the small kids. वो खेलने के बाद अपने खेलने के टॉयज ना ऐसे ही जमीन में पड़े रहने देते हैं। बाई चांस किसी का अगर पैर उसमें पड़ जाएगा तो वो पर्सन स्लिप कर सकता है, वो ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, किसी का क्या आपके संग भी हो सकता है, आपने इधर उधर सब टॉय फेंके हैं, और टॉय कैसे होते हैं, सब में व्हील्स वाले होते हैं। कोई बाई चांस इफ़ यू हैव नॉट सीन और गलती से आपने उस पर लेग अपना रख दिया, फुट रख दिया, तो हो सकता है आप स्लिप कर जाओ। स्लिप होने में आपके भाई इंजर्ड भी हो सकते हो, आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। सो डोंट डू दिस, डू नॉट लीव टॉयज एंड आफ्टर प्लेइंग केप्ट दीज टॉयज एट द प्रॉपर प्लेस। जो प्रॉपर प्लेस है जहाँ उसे रखा जाता है, आप वहाँ पे इनको रख दो। ठीक है, ये नहीं कि इधर उधर कहीं भी फ्लोर पे फेंक दिया है। ठीक है, इससे भी कोई भी इंजर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है कीप ऑल द मेडिसिन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन को लेके। देखो मेडिसिन, ओके, स्मॉल, देखो जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं हमेशा मेडिसिन जो होती है ना उनको दूर रखना चाहिए, जिससे कि वहाँ बच्चे नहीं पहुँच सकें। बिकॉज ऑल द टाइम अगर घर में कोई मेडिसिन खाता है ना तो बच्चों को लगता है अरे टॉफ़ी तो नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी, बच्चे टॉफ़ी समझ के खा जाते हैं मेडिसिन। So do kept medicine at such place in your house so that the children do not reach there. ऐसी जगह आप मेडिसिन रखिए कि जहां बच्चे रिच नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इफ द फ्लोर इज वेट सो मेक इट अ पॉइंट टू वाइप इट इमिडिएटली। अगर देखो फ्लोर पे बहुत वाटर है सो यू कांट रन ऑन दैट फ्लोर बिकॉज डेफिनेटली यू विल स्लिप। स्लिप हो गए, या तो कभी कभी होता है छोटी इंजरी हुई और या तो ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है, हैंड्स या लेग की बोन्स भी फ्रैक्चर्स हो सकती हैं। सो वेट फ्लोर है मतलब गीला फ्लोर है, उस पर दौड़ना नहीं चाहिए, और सबसे पहले उसे आप इमिडिएटली वहाँ से वाटर रिमूव करो फ्लोर से। ठीक है, नेक्स्ट है कीप टाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉइन बीड्स एंड। ठीक है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स में घर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। टाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉइन्स है, बीड्स हैं। ठीक है, सो ये सब छोटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना तो छोटे बच्चों की बेटा हैबिट होती है, उन्हें कोई भी चीज़ आप दे दोगे ना वो उसको पकड़ने के बाद डायरेक्टली माउथ में डाल लेते हैं। सो कभी कई के ऐसे होते हैं, आप अपनी मम्मी लोग से डिस्कस कर दिएगा, ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ आपको सुनाएंगी वो, कि कभी किसी बच्चे के गले में कॉइन फंस गई थी। बीड्स क्या होते हैं, छोटे मोती, या तो वो मुंह में डाल लेते हैं या अपने नोज में भी डाल सकते हैं, ईयर्स में भी डाल सकते हैं। सो these types of precautions we have to take. ठीक है, फिर है never play with match stick. ठीक है, never play with match stick. मैच स्टिक का पॉइंट आ गया। देखो बच्चों की हैबिट होती है मैच स्टिक से प्ले करने की, सो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। बाई चांस अगर घर में फायर लग गई देन इट इज अनएबल टू, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है, क्योंकि आग इतनी तेज जब बढ़ती है ना बेटा कि आप बिलीव नहीं कर सकते। सो ऑलवेज बर्न क्रैकर्स, और आप लोग के जब फेस्टिवल होते हैं, जो कोई स्पेशल ओकेजन्स आते हो तो आप लोग खूब क्रैकर्स बर्न करते हो, स्पेशली इन हिंदूज फेस्टिवल दिवाली में बच्चे खूब पटाखे चलाते हैं। सो इफ़ यू आर बर्निंग द क्रैकर्स बर्न अंडर द सुपरविजन ऑफ द एल्डर। अगर कोई आपके संग बड़ा है तभी आप क्रैकर्स बर्न करो, किसी बड़े के संग, ये नहीं कि अपने से बर्न कर रहे हैं। तो अगर ऐसा भी तो आपको किसी बड़े के सुपरविजन में ये करना चाहिए। ठीक है, स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि आज जो हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं
जिस घर में हम सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, उस घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हैं। अगर हम उन्हें प्रॉपर सेफ्टी से हैंडल नहीं करेंगे तो इवन वी गिव अप आवर लाइफ फॉर दैट आल्सो, हमारी लाइफ, हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि बोला है ना इसने, स्पेशल केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वी शुड नॉट टच देम विद वेट हैंड, मतलब गीले हाथों से तो कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं छूनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि देखो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से ही बनती है, सो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अगर आप बहुत तेज देखो, जैसे इलेक्ट्रिक का जो काम करते हैं वो हाथ में ग्लव्स पहनते हैं रबड़ के, और चप्पल भी पहनते हैं। ठीक है, सो रबड़ इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते, इसलिए रबड़ वो लोग वेयर करते हैं जब वो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। और आपने देखा होगा जहाँ भी वेयर दे आर ज्वाइनिंग द वायर्स, उसके बाद आप देखते होगे तुरंत वो उस पर टेप लगा देते हैं। अगर टेपिंग नहीं होगी, बाई चांस आपने ध्यान नहीं दिया एंड यू टच द वायर, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लग सकता है। ठीक है, so we should not touch them with wet hand, always wear rubber slippers or stand on a wood plank। वुड प्लैंक पे भी कार खड़े होकर काम करना चाहिए, क्योंकि वुड इज आल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें भी करंट पास नहीं होता। ठीक है, सिंस रबड़ एंड वुड आर इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया, वुड है, रबड़, आप इसको यूज करके इलेक्ट्रिक वर्क कर सकते हो, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। ठीक है, फिर आफ्टर डैट ये हो गया, फिर आफ्टर डैट हमने ठीक ये डिस्कस किया बी केयरफुल। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि बी केयरफुल while cooking in the kitchen, do not go near the gas stove without an adults, there is a leakage in the gas cylinder, immediately turn off the gas stove, open windows, do not light matchstick or switch off electrical appliances, call the agency maintenance person immediately। so see old time में लोग कैसे खाना बनाते थे, इन द ओल्ड टाइम दे आर कुकिंग फूड ऑन वुड, वुड से बर्न करके या तो कोयले से, लेकिन नाउ प्रेजेंट टाइम में फिर उसके बाद लोगों ने केरोसिन ऑयल पे भी स्टोव जलाना स्टार्ट किए। लेकिन अगर इस समय हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आपकी मम्मी लोग जो किचन में खाना बनाती हैं दैट इज एलपीजी गैस। ये क्या है? एलपीजी गैस है, फुल फॉर्म इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ओल्ड टाइम में देखो वुमेन्स बहुत मतलब उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि वुड और कोल पे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा धुआं स्मोक निकलता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इको फ्रेंडली है, इसमें कोई एलपीजी पे खाना बनाने पे कोई गैस नहीं निकलती है। ठीक है, आपने देखा होगा घर के किचन में जब फ्लेम जलता है तो उसमें से कोई स्मोक या तुमको डस्ट धुआं दिखता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो गैस है ना, इसमें रियल में बताएं इस गैस की कोई स्मेल नहीं है। ठीक है, इसमें स्मेल डाली गई है जानबूझ के, जिससे कि जब भी ये गैस लीक हो तो हमें पता चल जाए, ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरे घर में गैस हो जाएगी, आप नहीं समझ पाओगे। और आपने अनदर थिंग यू हैव ऑब्जर्व दैट जो हम लोग क्या लाइटर से, लाइटर में क्या है एक सिंगल स्पार्क निकलती है और आप एलपीजी जो फ्लेम होते हैं वो जलने लगते हैं एक स्पार्क से। इसीलिए बाई चांस बेटा अगर घर में ऐसा लगे कि स्मेल आ रही है गैस की, तो कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस को ना ऑन करो ना ऑफ करो। कभी कभी वो होता है ना बेटा, व्हेन वी ऑन एंड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच मे बी स्पार्क कम्स आउट, और क्या होगा आपको तो दिखाई दे नहीं रहा है, बस स्मेल आ रही है गैस, पूरे घर में आपके गैस है। आपने गलती से भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन ऑफ कर दिया और स्पार्क होगी तो पूरी तरफ आग लग जाएगी और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सो इट इज़ बेटर एट दिस सिचुएशन, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ भी जाती है बेटा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करो, अपने घर के सारे डोर्स विंडोज ओपन कर दो, सिलेंडर की जो नॉब है उसको क्लोज करो, डोर्स विंडोज सारे ओपन कर दो, और जिससे कि फ्रेश एयर अंदर आ सके। ठीक है, फ्रेश एयर अंदर आ सके, और गैस जब पूरे विंडो डोर्स ओपन करोगे तो वो आपके घर से बाहर की ओर भी निकल जाएगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ द एयर। सो इन दिस मैनर
we should take precaution when we are in our house. Okay, thank you student. We will continue this topic in the next video.